Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Ali Abdul Zaidi of Database System with lecture number 13. Student, we have discussed in last lecture different types of ER diagrams and class diagram. We have discussed in detail class diagram. Students, today's lecture is ER model to relational model mapping. What is mapping? Students, you know last time हमने mapping को पढ़ा था. This is the conversion, this is the change converting process. So after designing the ER diagram of system, we need to convert it to relational models which can directly be implemented by any RDBMS like Oracle, MySQL, etc. Students, let's see what is database design. Before studying the mapping, let's see database design. Goal of design is to generate a formal specification of the database schema, and this is methodology of this design. Use ER model to get a high level graphical view of essential components of enterprise and how they are related. Then convert ER diagram to SQL data definition language or whatever database model you are using. ER model is not SQL based. So students, the ER model, let's see a short view of ER model. The database represented is viewed as a graphical drawing of entities and attributes as discussed in the previous lectures. ER diagram or relational diagrams, relational models, relationships among those entities like not tables. Relational model क्या चीज़ है? The database is viewed as a tables and their attributes like keys. We could include constants but will not at this stage. Let's come on our topic, ER to relational mapping algorithm. Students, we have 7 steps processes like map regular entity types, map weak entity types, map binary one to one relation types. मैपिंग करेंगे हम बाइनरी की वन टू मैनी रिलेशनशिप में, मैपिंग बाइनरी की करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, एंड मैप करेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को, एंड मैप करेंगे एन अरे रिलेशनशिप्स टाइप्स को. लेट्स सी दिस मॉडल. आज हम टोटली इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे अपनी हर स्लाइड में, हर स्टेप में, और हम देखेंगे कि इसमें जितनी मैपिंग्स हम करेंगे लाइक वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है या एन अरे है, उन तमाम को हम देखेंगे इस मॉडल के अंदर कि एक्चुअली ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स सी. दिस इज़ एन ER मॉडल ऑफ एम्प्लॉय and department, project, dependents. Let's see. First step, mapping of regular entity types. For each regular means strong entity type E in the ER schema, create a relation R that includes all the simple attributes of E. Students, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे पास पर्सन है लाइक जो कि इंडिपेंडेंट एंटिटी है हमारे पास. तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसको एक रिलेशन का नाम देंगे, और उस रिलेशन को लाइक हमने लास्ट टाइम जो देखा, लास्ट टाइम जो स्लाइड अभी देखिए, ये देखें ER मॉडल मींस एम्प्लॉय इज़ एन एंटिटी. इसको हमने एक मॉडल का नाम दिया, एक एंटिटी का नाम दिया, और इसका हम एक रिलेशन क्रिएट करेंगे मींस द अदर नेम ऑफ रिलेशन इज टेबल. चूज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ E एज द प्राइमरी की ऑफ R. इसमें से हम एट्रीब्यूट लेंगे और उस एक को हम प्राइमरी की शो करेंगे. और यू नो एज यू अर्लियर स्टडीड कि हमारे पास जो प्राइमरी की होती है इट शुड बी यूनिक की.
Third one, if the chosen key of E is composite, the set of simple attributes that form it will together form the primary key of R. Let's see in this table, employee is an entity, department is an entity, project is an entity. So हमने अभी लास्ट स्लाइड में यही देखा कि हम अपने जितनी एंटिटीज़ हैं उनको एक टेबल में रिलेशन में आर की फॉर्म में शो करेंगे. एम्प्लॉय को हमने टेबल क्रिएट किया जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं. फर्स्ट नेम, मिनट, लास्ट नेम, सेक्स, एड्रेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी नंबर और बर्थडे वगैरह. इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट का एक टेबल क्रिएट किया जिसके हमने एट्रीब्यूट्स फ़िलहाल 2 ही रखे हैं, नेम एंड नंबर. स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों टेबल्स में एक अंडरलाइन वर्ड शो हो रहा है लाइक एम्प्लॉई. एम्प्लॉई के अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर है. हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो नंबर आपको अंडरलाइन शो हो रहा है. एंड थर्ड एंटिटी इज़ प्रोजेक्ट, मींस थर्ड रिलेशन इस प्रोजेक्ट. इसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास नेम, नंबर और लोकेशन, और फिर यहाँ पे भी नंबर जो है इसको अंडरलाइन शो किया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स ये बात अपने जहन में रखें कि जहाँ पे भी जो भी एट्रीब्यूट अंडरलाइन होगा इट विल प्राइमरी की. सेकेंड स्टेप ऑफ मैपिंग वीक एंटिटी. जैसे अभी हमने बात की स्ट्रॉन्ग एंटिटी की, वीक एंटिटी का पहले अपने माइंड में स्केच ले आएँ कि वीक एंटिटी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि वीक एंटिटी वो एंटिटी है जो पेरेंट से इनहेरिट होती है. पेरेंट है देन डिपेंडेंट होती है हमारी किसी और एंटिटी के थ्रू. तो इस तरह से ये वीक एंटिटी है. और वीक एंटिटी अगर नहीं भी होती तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं है तो वीक एंटिटी का वजूद नहीं होता. सो फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप W in the ER schema with honor entity type E, create a relation R and include all simple attributes. हम वीक एंटिटी के लिए भी एक रिलेशन जो है वो क्रिएट करेंगे विद इट्स एट्रीब्यूट्स और सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऑफ W. W मीन हमारे पास जो वीक एंटिटी है एज एट्रीब्यूट ऑफ R. Also include as foreign key include attributes of R the primary key attributes of the relations that correspond to the honor entity type. फॉरेन की हम क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी अभी बना के आए हैं, हमारे पास मेन टेबल रिलेशन क्रिएट हो चुका है. तो नेक्स्ट टेबल में हमारे पास कोई ऐसी की आ चुकी है जो कि फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की है, तो इट शुड बी फॉरेन की. The primary key of R is the combination of the primary key of the honor and the partial key of the weak entity type W if any. Let's see. हमारे पास employee, आप देख सकते हैं कि employee जो है वो strong entity है और department इसमें है, department राइट पैनल पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. लेकिन स्टूडेंट्स डिपेंडेंट्स ऑफ में एक डिपेंडेंट नज़र आ रहा है जो कि डबल लाइन है. स्टूडेंट्स ये हमें वीक एंटिटी शो कर रहा है. इट मीन्स कि डिपेंडेंट्स अगर ना भी होते तो इनकी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये डिपेंडेंट्स हैं. डिपेंडेंट्स नेम से रिलेशन भी डिपेंडेंट्स के नेम से आपको नज़र आ रहा है. तो दीज आर वीक एंटिटीज़. लाइक अभी लास्ट हमने देखा था एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट टेबल, बट हम यहाँ पे एक और एंटिटी को ऐड कर रहे हैं दैट इज़ वीक एंटिटी नेम्ड डिपेंडेंट. अभी लास्ट स्लाइड इसमें प्रोजेक्ट में आपने देखा ईयर मॉडल में कि डिपेंडेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम पे डबल लाइन शो हो रहा है. इट डिपेक्ट्स द वीक एंटिटी. सो एम्प्लॉई वही टेबल है आपके पास, फर्स्ट नेम, मिनट है, लास्ट नेम है, सेक्स है, एड्रेस है, सैलरी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थडे वगैरह है. और डिपार्टमेंट में भी वही नेम एंड नंबर है और स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में भी नंबर लोकेशन है. बट हमारे पास जो न्यू एक एंटिटी ऐड हुई है, यहाँ पे एक न्यू रिलेशन हमने जो क्रिएट किया डिपेंडेंट नेम का, इसमें एम्प्लॉई का सोशल सिक्योरिटी नंबर, नेम, सेक्स, बर्थडे और रिलेशनशिप हमने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्रिएट किए. स्टूडेंट्स यू कैन सी एन एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने इस डिपेंडेंट रिलेशन के अंदर इसको प्राइमरी शो किया. बट यू कैन सी इन द टेबल ऑफ एम्प्लॉई
रिलेशन एम्प्लॉय में सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारे पास अलग से शो हो रहा है। इट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे प्राइमरी, वहाँ हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर प्राइमरी है, तो डिपेंडेंट में आके फॉरेन की शो हो जाएगी। अभी हमने स्टेप 2 में यही देखा कि हमने फॉरेन की भी मेंशन करनी है, तो सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ फॉरेन की इन द वीक एंटिटी डिपार्टमेंट डिपेंडेंट। द थर्ड स्टेप, मैपिंग ऑफ बाइनरी 1-to-1 रिलेशन टाइप्स। लास्ट टाइम भी हम 1-to-1 का रिलेशन जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। फॉर ईच बाइनरी 1-to-1 रिलेशनशिप टाइप आर इन द ईयर स्कीमा, आइडेंटिफाई द रिलेशंस SANT, S and T that correspond to the entity types participating in R. Choose one of the relations, say S and including a foreign key in S, the primary key of T. It is better to choose an entity type with total participation in R in the role of S. आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास मैनेजेस एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई हमारे पास है, डिपार्टमेंट हमारे पास, दो रिलेशन है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है मैनेजेस नाम का। दिस इज 1-to-1। एक एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। क्लियर? सो इट इज 1-to-1। यू कैन सी इन द डायग्राम मैनेजेस। जी, आप इसको टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट में जाके देख सकते हैं कि पहले हमने शो किया था कि एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो सोशल सिक्योरिटी सेम नंबर है, बट आप यहाँ डिपार्टमेंट में देखें, क्योंकि अभी हमने एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट की बात की, तो डिपार्टमेंट टेबल में नेम, नंबर, मैनेजर सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर और मैनेजर स्टार्टिंग डेट। तो मैनेजर का जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, क्या वो वही एम्प्लॉई है? एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वही है। सो बोथ आर सेम। दिस इज 1-to-1 रिलेशन। स्टेप 4, मैपिंग ऑफ बाइनरी 1-to-many रिलेशनशिप टाइप्स। फॉर ईच रेगुलर बाइनरी 1-to-many रिलेशनशिप, one you can say 1-to-n, n mean many, 1-to-n relationship type are, identify the relation as that represent the participating entity type at the n side of the relationship type. Include as foreign key in the S primary key of the relation T that represents the other entity type participating in R. Include any simple attribute of the 1-to-n relation type S as attribute of S. 1-to-many, you can see डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर एक रिलेशन है कंट्रोल्स का। डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट, दिस इज 1-to-n। वन डिपार्टमेंट मे कंट्रोल्स मैनी प्रोजेक्ट्स और may not control many any one project. आप डबल लाइन देख रहे हैं, दिस इज नॉट कंपल्सरी, वीक एंटिटी। सो एक डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स को रन कर कंट्रोल कर रहा है और इट मे बी पॉसिबल कि उसके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। जी, डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट नंबर है, आप उसी को डिपार्टमेंट रिलेशन में जाके देखें तो वो नंबर वहाँ शो हो रहा है। दिस इज 1-to-n relation. So many-to-n, m-to-n or many-to-many mapping of binary relationship types. For each regular binary m-to-n relationship type R, create a new relation S to represent R. Include as foreign key attributes in S the primary keys of the relations that represents the participating entity types. Their combination will form the primary key of S.
Also include any simple attributes of the M to N relationship as attribute of S. Look at this diagram again. Many to N, M to N. Student, employee and project दोनों एंटिटीज़, दोनों रिलेशंस के दरमियान एक जो रिलेशन है वो है वर्क्स ऑन. यू कैन सी इट मैनी टू एन और मैनी टू मैनी. Many employees works on many projects. Clear? So this is M to N mapping. Again see in this table, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने 2-3 दफ़ा देखा कि इक्वल है. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो प्रोजेक्ट के नंबर में भी सेम आ रहा है, एंड मैनेजर का जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के साथ मैच हो रहा है. इसके अलावा जो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो भी नीचे आप देख सकते हैं कि सेम हो रहा है. वर्क्स ऑन में आप देखें कि जो मैनी टू मैनी है, वर्क्स ऑन एंड प्रोजेक्ट दो हमारे पास रिलेशन है. अब वर्क्स ऑन और प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट नंबर है और प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट रिलेशन में नंबर, बोथ आर M to N relation. The sixth step of this algorithm is mapping of multi-valued attributes. Students, for each multi-valued attribute A, create a new relation R. जहाँ पे भी हमें multi-valued attribute नज़र आएगा, like multi-valued attribute की एग्जाम्पल हमने डेट से ली थी. अब डेट में हमारे पास एड्रेस, मंथ, ईयर, डे, ये मल्टी वैल्यूज़ हो सकती हैं एक एट्रीब्यूट की. एड्रेस की भी जैसे मैंने बात की है, एड्रेस में स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ये सिटी, जोन, रीजन, ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ चुकी होती हैं. तो ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. सो हमने हर एक अलग एट्रीब्यूट के लिए एक अलग रिलेशन जो है वो क्रिएट करना है. दिस रिलेशन R will include an attribute corresponding to A plus the primary key attribute K as a foreign key in R of the relation that represents the entity type of relationship that has A as an attribute. The primary key of R is the combination of A and K. If the multi-valued attribute is composite, we include its simple component. You can see in the multi-valued attributes. Multi-valued attributes डिपार्टमेंट, इसमें लोकेशंस को आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट्स की लोकेशंस. और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉई में नेम है, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम और उसका लास्ट नेम जो है वो उसके मल्टी वैल्यूज़ हो सकते हैं. तो ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का रिलेशन मैप्स जो है, इनको मैपिंग जो है वो शो कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बार बार जो हमारे पास ये एम्प्लॉई में और डिपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं एम्प्लॉई टेबल के अंदर भी मल्टी वैल्यू दोबारा सुपर सोशल सिक्योरिटी नंबर, बात तो वही है, सेम है, बट ये मल्टी वैल्यूड हो चुके हैं. एम्प्लॉई के अलावा हमने देखा कि ये डिपार्टमेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैनेजर सोशल सिक्योरिटी नंबर और नंबर दोनों बार बार मल्टी वैल्यू हो रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज मैपिंग ऑफ एन अरे रिलेशनशिप टाइप्स. फॉर ईच एन अरे रिलेशनशिप टाइप आर वेयर n is greater than 2, एटलीस्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हैं वो दो से ज़्यादा हों. क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप एस टू रिप्रेजेंट R. Include as foreign key attributes in S the primary keys of the relations that represents the participating entity types
Also include any simple attributes of the n array relationship type or simple components of composite attributes as attributes of S. You can see n array. n array mean हमारे पास सप्लायर है, उसका भी एट्रीब्यूट प्राइमरी है. हमारे पास प्रोजेक्ट रिलेशन है, उसका भी एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट नेम प्राइमरी है. फिर हमारे पास पार्ट है, पार्ट रिलेशन का भी पार्ट नंबर एक ही एट्रीब्यूट जो है वो हमें प्राइमरी नज़र आ रहा है. दिस इज़ एन अरे, और इन तीनों का आपस में सप्लाई से कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, और सप्लाई का फिर दोबारा एक एन अरे शो हो रहा है क्वांटिटी. सो दिस इज मैपिंग ऑफ एन अरे रिलेशनशिप टाइप्स. Students, today we have discussed different types of mapping, year 2 year model mapping. हमने 7 steps को देखा. 7 different steps mean an array, many to many, many to one, one to one, and different types of mapping. I hope कि आपको ये तमाम slides understand हो चुकी होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.